नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे लॉकडाउन एक साल से ऊपर हो गए तो हम शिक्षकों के को ऑफलाइन से ऑनलाइन पढ़ाई में काफ़ी दिक्कत हो रही है। ऑफलाइन पढ़ाई के में जो है हम लोग सालों से अभ्यस्त हैं। जो दो सॉफ्टवेयर हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। सो अभी हम लोग दो सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो है ओपन बोर्ड, और एक डिवाइस यूज़ करते हैं वन बाय वाकम फॉर राइटिंग एज वाइट बोर्ड। अब वन बाय वाकम क्या है? एक स्लेट जैसी डिवाइस है। इसमें हम जो भी लिखेंगे ये हमारे स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे, ऑनलाइन स्क्रीन में डिस्प्ले करेंगे। ये एक डिवाइस है। इसके साथ हमारे पास एक पेन आती है। इस पेन में एक पॉइंटर है। इस पॉइंटर में सेंसर है। सेंसर के थ्रू से जो भी हम उस बोर्ड को जब भी जहाँ भी टच करते हैं उसके अनुसार स्क्रीन में वो दिखता है, या जो भी करेंगे वो दिखता है। ये इस पेन को हम एज ए माउस और एज ए स्केच पेन की तरह यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग जनरली वाइट बोर्ड में लिखते हैं उसी तरह लिख सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं। तो ये हम दिखाते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं हम। देखिए ये जैसे ही हम मूव करेंगे, इसको जैसे ही जहाँ भी मूव करेंगे ये दिखेगा, ये इसको स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। तो सपोज हम इसे मूव कर रहे हैं और मुझे कुछ लिखना है, तो जैसे ही हम लिखेंगे ये जो भी लिखेंगे वो डिस्प्ले होने लगेगा। यू कैन राइट, जैसे भी राइट करना चाहते हैं हम लिख सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे टूल हैं। इस इस डिवाइस के साथ साथ हम इस ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर का भी सारे जो टूल्स हैं उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे जो डिवाइस है ओपन बोर्ड वाकम का टैबलेट और ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू से हम इस पढ़ाई को, ऑनलाइन पढ़ाई को बहुत ही इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो अब हम दिखाते हैं कि किस तरह से ओपन बोर्ड के सॉफ्टवेयर को, टूल्स को यूज़ किया जाए। ओपन बोर्ड के सॉफ्टवेयर में देखिए ये एक टूल है, टूल की मेनू है। दिस इज द टूल बॉक्स, एंड दिस टूल बॉक्स कंटेन्स लॉट ऑफ different types of tools. So some of the tools you can, this tool is for writing. You can write anything there, whatever as you can write in a board, that the same way you can write here. You can write here. So whatever you want to write, you can write. You can make the pen small small tip to bigger tips. Suppose a small line if you want to print, type in a small, then you can do. Then middle, then you can write, this is the middle, and you can use it in more bold way. You can change the colors also. Suppose it is required to that you want to change the colors, then you can change the colors also. You can change the colors there. Any type of color you can change. And you if you have a other device eraser, you can delete it. You can make the eraser bigger and smaller. This is the device, it can be used for bigger and smaller. So you can make it bigger and smaller. So one also we have one erase devices that will remove all the things. Next we have highlighter is there. You can highlight something there. You can highlight some part of the thing, some part of the statements or syntax. Okay.
So suppose it is required to be highlighted, then you can highlight it. And you have to do the little bit practice. Little bit practice is required there. Now we have a pointer, so this pointer is there. Now we have you can show you the contents there, that hand by hand you can display that in this place I am teaching whatever you are want to give. And then for the movement, this is the tool, this hand tool. You can move the things there, move the things there. You can make the screen bigger and smaller also. And then one tool is there for uh, highlighting the or giving some light to that where you are actually pointing the things, where you are teaching, and which sentence you are talking about formula and other things. Then we have one other tool. This tool is used for drawing the lines, so lines are required if there. Then other tools are there also, so you can write here through keyboard. If you want to use the keyboard, then you can also use the keyboard there. So keyboard option is there also. You can use the keyboard there, so you can write something there. Online education, you can write, you can make it smaller, bigger, you can change the direction. Online class, so you can font, you can change the font also. Yeah, the font is there. Okay. You can change the font there. So in this way we can change, we can do a lot of things there. Now अभी हम लोग कुछ तरह का डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भी अगर लाना है तो डॉक्यूमेंट्स को भी आप ला सकते हैं इसमें से। सपोज यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके सारे आ जाएंगे। अब यहाँ से आप जिस डॉक्यूमेंट को लेना चाहेंगे उसको डबल क्लिक कर देंगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट आप उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक को निकाल के आप पढ़ा सकते हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना हो। तो सपोज ये मेरा बुक रखा हुआ है, तो इस बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ा सकते हैं, किसी भी पेज में जा सकते हैं। यू कैन डू दिस। किसी भी चैप्टर में जाके नेक्स्ट पेज करेंगे तो आपका नया पेज आते जाएंगे, दूसरे पेज आते जाएंगे। तो इस तरह से हम उसको किसी भी तरह का काम कर सकते हैं। अब इस टूल से हम इसको मूव कर देंगे तो हमारा फिर से ये स्क्रीन आ जाएगा, नया स्क्रीन। और इस तरह से हम बहुत सारे टूल यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपका नेट के थ्रू से कुछ दिखाना, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो नेट आ जाएगा। ओपन बोर्ड को अगर आप बंद करना चाहते हैं तो बंद भी कर सकते हैं। सपोज आप बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शो डेस्कटॉप करेंगे तो बंद हो जाएगा। और आपका फिर से जो भी कंप्यूटर रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन खोलना है, सपोज मैं कंप्यूटर साइंस का पढ़ाता हूँ तो मुझे सॉफ्टवेयर लोड करने, तो सॉफ्टवेयर लोड करके दिखा सकते हैं। आप अगर कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं, एनिमेशन दिखाना चाहते हैं, या और भी कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और फिर आप जब भी चाहेंगे ये ओपन बोर्ड को फिर से खोल के काम कर सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और ये हमारे पास वाइट बोर्ड की तरह ही फैसिलिटी देता है। उसके साथ साथ हम हमारे पास और भी नए फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। सब कलरिंग करने की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, फ़ॉन्ट साइज चेंज करने की मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स का डिफरेंशिएट तो हाईलाइट कर सकते हैं, और नेट के थ्रू से भी कुछ दिखा सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव बना देती है। तो आशा हुआ है कि इस वीडियो से आप ये इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के फैसिलिटी को यूज़ करेंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।